Hello my dear students, how are you all? So dear students, I am Ajay Rana from Gateway International School बागपत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। So dear students, जैसा कि आपको पता है चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। So factorization of polynomials में we have already discussed about our first 4 exercises. Now let's move to the next exercises. So in this exercise we will use the identity. Which identity? That will be x plus y whole cube, that will be equals to x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square, or we can write it as x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. Clear hai students? And the second identity that we will use, that is x minus y whole cube, that is equals to x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. That can also be written as x cube minus y cube minus 3xy into x minus y. क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं कि ये दोनों आइडेंटिटीज हमें फाइंड कैसे हुई, मिली कहां से, देखते हैं। सिंपल है, x प्लस वाई होल क्यूब मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? दैट कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इंटू दिस इज x प्लस वाई होल स्क्वायर. When we will multiply these two, we will get x square plus y square plus 2xy. क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों फैक्टर्स को. What we will get? We will get x cube x into y square, that is xy square, x into 2xy, that will be 2x square y. Next, y into x square, that will be x square y plus y into y square, that will be y cube, and plus it will be 2x y square. Clear है? Now simplify this. We will get x cube plus y cube plus 2x square y plus 1x square y, that will be 3x square y plus xy square plus 2xy square, that is 3xy square. Clear है? So now we can write it also x cube plus इन दोनों ही टर्म्स में से 3xy आप कॉमन ले लीजिए. क्या मिलेगा आपको? दैट विल बी x प्लस y. क्लियर हो गया? सो इन दिस वे वी गेट दिस आइडेंटिटी x प्लस वाई होल क्यूब, that is equals to x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज x minus y whole cube. So that will be x minus y whole cube. It will be x minus y into x minus y whole square. We can write it as, so now it will be x minus y into x square plus y square minus 2xy. क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? Now we will multiply these two factors and we will get x cube plus x y square minus 2x square y. क्लियर है? माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई, देन माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, दैट इज माइनस वाई क्यूब, एंड माइनस माइनस प्लस 2x वाई स्क्वायर. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ इट विल बी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 2x square y minus x square y, that will be 3
एक्स स्क्वेयर वाई। क्लियर है? देन एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2xy स्क्वेयर दैट इज प्लस 3xy स्क्वेयर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो वी गेट दिस नाउ इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड टेक 3xy common from these two terms. Minus 3xy we took common, and what we get? We get plus x and minus y. Okay, so we get this form. Clear students? So in this way we found out two identities, x plus y whole cube and x minus y whole cube. Dear students, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में टू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। वन विल बी एक्सपेंशन, मीन्स आपको ये फॉर्म गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस फॉर्म। क्लियर है? एंड नेक्स्ट विल बी आपको ये फॉर्म गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस, मीन्स वन विल बी एक्सपेंशन एंड नेक्स्ट विल बी फैक्टराइजेशन। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप। जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे दैट विल बी एक्सपेंड द गिवन पॉलिनोमियल, दैट विल बी एक्सपेंशन। सो क्वेश्चन होगा आपका कि एक्सपेंड एंड व्हाट वी हैव टू एक्सपेंड, लेट्स हैव 3x plus 2 whole cube. There are two ways. Either we multiplied it, means 3x plus 2 into 3x plus 2 into 3x plus 2. यहां पर दो तरीके होंगे, या तो आप 3x plus 2 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे और you will use this identity. Then first of all you will write the identity here. I have written it here only. So it will be now x cube means 3x cube. क्यों भाई? Because jf x plus y के फॉर्म में है। x के प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास 3x एंड y के प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास 2. So now 3x cube plus y cube होना है, y क्या हमारे पास 2 है, that will be 2 cube प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर। हमारे पास x क्या है, दैट इज 3x, ले लीजिए 3x होल स्क्वेयर इंटू y के प्लेस पर हमारे पास है 2 प्लस 3 इंटू x इज 3x एंड y इज 2, सो वी विल राइट इट नाउ 2 स्क्वेयर। क्लियर हो गया? सबसे पहला है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में या आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो किस फॉर्म में है, आप उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे। हमने यहां पर देखा ये x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्म में आ गया। देन वी विल राइट द आइडेंटिटी। हमेशा याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन यूज करते हैं एंड इफ यू आर यूजिंग एनी आइडेंटिटी, अगर आप कोई भी आइडेंटिटी उसमें यूज कर रहे हैं, आपको वो आइडेंटिटी वहां पर लिखनी होगी। क्या करना होगा? आपको वो आइडेंटिटी लिखनी होगी। क्लियर है ना? सो मैं इसको पहले ही लिख चुका हूं इसलिए यहां नहीं लिखी है, अदरवाइज यू हैव टू राइट कि हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और उसके बाद आप ये एक्सपेंशन करेंगे। अब दूसरा काम आता है, पहला आइडेंटिटी पहचान लिया, फिर हमने उसमें पहचाने कि x क्या है और y क्या है, उसको एक्सपेंड किया। नाउ जब हमने उसमें वैल्यूज पुट कर दिए हैं बहुत ही ध्यान से विद साइन कन्वेंशन, नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। 3x होल क्यूब दैट इज 27x क्यूब, 2 क्यूब दैट इज 8 प्लस 3 इंटू 9x स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4। क्लियर हो गया? सो नाउ इट विल बी 27x क्यूब प्लस 8 प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा 54x स्क्वेयर प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36x. That's all. That is the expansion of this given term. Let's have another example. Let's have 3a plus 1 upon 4b whole cube. होल क्यूब आ गया मीन्स आइडेंटिटी तो यही हो गई। x की जगह पर क्या आ गया? दैट इज 3a। y के प्लेस पर क्या आ गया? दैट इज 1 upon 4b। फर्स्ट हमारा काम हो गया, आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? ये वाली होगी। x क्या हो गया? 3a हो गया, b
y क्या हो गया 1/4b हो गया। अब हमारे पास एक्सपेंशन क्या हो गया x क्यूब दैट इज 3a क्यूब प्लस y क्यूब दैट इज 1/4b का क्यूब प्लस 3x square y and what is x is 3a so its square into y is 1/4b. Is it clear? Now plus 3a is 3a into b square 1/4b whole square. Clear my dear students? So now it will be क्यूब कीजिए 3 क्यूब that is 27a क्यूब प्लस 1/4b होल क्यूब 1 का क्यूब 1 आ गया एंड 4 का क्यूब 64b क्यूब प्लस 3 into 3a होल स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर इंटू 1/4b प्लस 3 3 is 9a इंटू 1/16b स्क्वायर। हमने इसको सॉल्यूशन कर लिया एंड नाउ द फाइनल टच विल बी 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब प्लस 9 3 is 27a स्क्वायर अपॉन 4b प्लस 9a/16b स्क्वायर। क्लियर हो गया? सो दैट्स ऑल, फिनिश हो गया हमारे पास क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी का जिसमें यूज होगा मींस देयर इज माइनस, जहां पर हमें एक बीच में क्या गिवन हो माइनस गिवन होगा, वही देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3x माइनस 5/x होल क्यूब, 3x माइनस 5/x होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? नाउ आइडेंटिटी विल बी यूज्ड x माइनस y होल क्यूब। क्लियर हो गया? x माइनस y होल क्यूब दैट इज x क्यूब मींस 3x होल क्यूब माइनस y क्यूब एंड y इज 5/x, 5/x होल क्यूब, then it is minus 3x square, x is 3x and its whole square into y is 5/x। क्लियर हो गया? प्लस 3xy square, 3 into x, what is x? x is 3x, 3x into what is y? y square हमें चाहिए, क्या है हमारे पास y is minus 5/x and its whole square। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हमने क्या किया यहां पर, सिंपली हमने x माइनस वाई होल क्यूब लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, x के प्लेस पर हमारे पास 3x, व्हाट इज द इन प्लेस ऑफ y दैट इज माइनस 5/x, तो y हो गया हमारे पास 5/x, वैल्यू पुट की x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। क्लियर हो गया? सो दैट इज इक्वल्स टू 3 क्यूब दैट इज 27 x क्यूब माइनस 5 का क्यूब दैट इज 125 अपॉन x क्यूब माइनस 3 इंटू दिस इज 9x स्क्वेयर इंटू 5/x प्लस 3 इंटू 3x इंटू 25 अपॉन x स्क्वेयर। इज इट क्लियर माई डियर? सो नाउ इट कैन बी रिटन एज 27 x क्यूब माइनस 125 अपॉन x क्यूब। एक x से एक x आप कैंसिल कर सकते हैं, क्या मिला? माइनस 9 3 जा 27, 27 इंटू 5 दैट इज 135 इंटू x। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज प्लस एक x को आप एक x से कैंसिल कर सकते हैं, क्या रह गया? 3 3 जा 9, 9 इंटू 25 दैट इज 225 अपॉन x। दैट्स ऑल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 5/x होल क्यूब। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेने जा रहे हैं दैट इज
नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारे पास 4/5a minus 2 whole cube. Same identity we will use, that is x cube minus y cube, that is 2 cube, minus 3x square, that is 4/5a whole square into y, that is 2, plus 3 into x is 4/5a and y is 2 and its whole square. क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चंस में वैल्यू पुट कर दी. अब क्या करते हैं? 4 क्यूब दैट इज 64 and 5 cube that is 125 into a cube, minus 2 cube that is 8, minus 3 into 16a square upon 25 into 2, plus 3 into 4 upon 5a into 4. क्लियर हो गया? अब क्या मिलेगा हमें? नाउ वी विल गेट 64 upon 125 a cube, then it is minus 8, then माइनस में अब क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, 3 to 6 and 16 into 6 96 upon 25 a square, then it will be 4 4 the 16, 16 3 the 48 upon 5 a. That's all this question. क्लियर हो गया? अब देखिए, हम ये चीज 4-5 एग्जांपल्स हम कर चुके हैं एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आइडेंटिटी. नाउ बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे एंड नाउ वी विल यूज दिस आइडेंटिटी इन फाइंडिंग द न्यूमेरिकल क्यूब. मींस अगर हमें कोई सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स होल क्यूब, लाइक 103 क्यूब. अगर हमें 103 का क्यूब फाइंड आउट करना है सो हम क्या करेंगे? या तो दो मेथड है, 103 इंटू 103 एंड जो भी आएगा फिर उसमें फिर से 103 की मल्टीप्लाई, या फिर हमारे पास आपकी क्लास में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा यूजिंग आइडेंटिटी. यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस कि यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड 103 होल क्यूब. सो वी विल राइट इट एज 100 प्लस 3 होल क्यूब. क्लियर हो गया? हम आइडेंटिटीज का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाए. सो दैट विल बी 100 प्लस 3 होल क्यूब एंड इट विल बी 100 प्लस 3 होल क्यूब, दैट विल बी a क्यूब, यानी कि x क्यूब दैट इज 100 क्यूब, प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू x स्क्वेयर दैट इज 100 स्क्वेयर इंटू y, y इज 3, plus 3 into x into y square, that is 3 square. क्लियर हो गया? Now it will be 100 cube. बहुत ही सिंपल है ना? 2 zeros 2 zeros and 2 zeros हो गया ना? That is 10 lakh plus 3 cube that is 27 plus 3 into 100 square that is 10,000 into 3 plus 3 into 100 into 9. क्लियर हो गया? नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट. 10 lakh प्लस 27 प्लस 10,000 into 9 that is 90,000 plus 9 3 is 27 into 100 2700. And now what will be the answer? Answer will be 10 lakh plus 90,000 plus 2700 plus 27 means 0 plus 7 plus 0 0, that is 7. Next digit will be 2, third digit will be 7, fourth digit will be 2. आगे बढ़ते हैं. Fifth digit is 9, sixth is again 0 and seventh is 1, means it will be 10,92,727. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 99 होल क्यूब. अगेन द सेम क्वेश्चन विल बी यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड 99 होल क्यूब.
दैट विल बी 100 माइनस 1 होल क्यूब। क्लियर हो गया? क्या मिलेगा हमें? 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी वी विल यूज हियर, दैट इज x माइनस वाई होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी कि y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर इंटू y इज 1 प्लस 3 इंटू x इज 100 एंड y इज 1, सो 1 स्क्वायर दैट इज 1। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमें वैल्यूज ही पुट करनी है। नाउ इट विल बी 100 क्यूब दैट इज अगेन 10 लाख माइनस 1 क्यूब यानी 1 माइनस 100 स्क्वायर दैट इज 10,000, 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 प्लस 300। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? सबसे पहले जो प्लस वाले हैं इनको एक साथ ऐड कर लीजिए, दैट इज 10 लाख 300 माइनस 30,000 1। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। 0 माइनस 1 हो नहीं सकता, सो लेक 0 माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 दैट इज 9, 9 माइनस 0 दैट इज 9, हियर वी गेट 2, सो 2 माइनस 0 दैट इज 2। आगे क्या रह गया? 4 डिजिट है 0, 5th डिजिट पे 0 आ गया, यहां पर क्या है? 3 है, सो 10 माइनस 3 दैट इज 7 एंड हियर वी गेट 9, सो इट इज 9,70,299। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? सो नाउ सेकेंड टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। सेकेंड टाइप क्वेश्चंस क्या होगा? वहां पर आपके पास आएगा फैक्टराइजेशन। क्या आएगा अब आपके पास? अब आपके पास आएगा फैक्टराइजेशन। सो क्वेश्चन आपके पास होगा फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करना है? फैक्टराइज हमें करना है 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब माइनस 144 प्लस ही होगा 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर। ये तो क्लियर है माय डियर कि ये हमें यहां से यूज करना है क्योंकि हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा पूरे चैप्टर में से, वहां पर हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इसका फैक्टराइजेशन होगा कैसे, कौन से मेथड से होगा? बिकॉज हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज में कम से भी कम 14-15 आइडेंटिटीज हैं जो हमें यूज करनी है। तो क्या होगा हमारे पास? देखिए कैसे आइडेंटिफाई होगा कि सबसे पहले हम उसको चेक करें कि वो किस रूप में है, और उसके लिए हमें सभी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए अच्छे से टिप्स पर। क्या होगा? 64a क्यूब मींस इट इज 4a क्यूब प्लस 3b क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब। तो आ गया। अब आगे क्या है डियर स्टूडेंट्स? रिमेंबर, आगे भी आपके पास कुछ ऐसी ही आइडेंटिटीज आएंगी जिसमें x क्यूब प्लस y क्यूब का ही यूज होगा। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आगे जब हम बढ़ेंगे तब उसको भी अच्छे से फिर से डिफाइन करेंगे। नाउ इट इज 3 इंटू ए स्क्वायर। क्या हमारे पास यहां पर 16a स्क्वायर इंटू 3b के रूप में है? ये देख लेते हैं। 16 इंटू 3 48, 48 3 जार 144। हाँ है a स्क्वायर इंटू b। यस, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3x स्क्वायर y प्लस 3x इज 4a एंड y इज 9b स्क्वायर। क्या जो हमने अभी लिखा है ये इसी के इक्वल है? 4 3 12, 12 9 108 a b square. Yes. So now this question is in the form of 4a whole cube plus 3b whole cube plus 4a whole square into 3b plus 3 into 4a into 3b whole square. So now अब आप लिख सकते हैं कि सिंस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल क्यूब, ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस लिख के, कि क्योंकि या चूंकि बोलते हैं हिंदी में, तो सिंस
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर. सो इट रिप्रेजेंट दैट दिस विल बी 4a प्लस 3b होल क्यूब. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो ये आपके पास आ गया इसका फैक्टराइजेशन. आप इसको अलग अलग लिखना चाहे अलग अलग लिख दीजिए, अदरवाइज यू कैन राइट इट एज 4a प्लस 3b होल क्यूब. क्लियर स्टूडेंट्स? यस. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फैक्टराइज. What we have to factorize? We have to factorize 1 plus 27 upon 125 a cube plus 9 upon 5 a plus 27 upon 25 a square. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारे पास आ गया. फिर से देखते हैं ये क्या रूप बनेगा. 1 क्यूब प्लस 3 अपॉन 5 a होल क्यूब प्लस ये क्या बनेगा 3 इंटू, क्या मैं 1 का होल स्क्वायर लिखूं इसके साथ, लिख देते हैं, इंटू 3 अपॉन 5 a होल स्क्वायर. क्लियर हो गया? देन वी विल राइट 3 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 5 a होल स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां देख रहे हैं कि नाउ दिस इज 1 क्यूब है, 3 अपॉन 5 आप देखते हैं 27 इज द क्यूब ऑफ 3, 125 इज द क्यूब ऑफ 5 एंड a क्यूब इज द क्यूब ऑफ a. सो इट कैन बी रिटन एज 3 अपॉन 5 a होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 अपॉन 5 a. क्या हो गया 3 3 9 अपॉन 5 a. तो 3a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 1 आपके पास है इंटू 3 अपॉन 5 a का होल स्क्वायर यानी कि y का होल स्क्वायर. आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको. 3 3 9, 9 3 27 अपॉन 25 a स्क्वायर. ये इसी को ही हमने इस रूप में लिखा है. मींस फिर से वही आइडेंटिटी लिखेंगे कि सिंस पूरी आइडेंटिटी आप लिखेंगे यहां पर. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन 5 a का होल क्यूब. सो इट विल बी 1 प्लस 3 अपॉन 5 a होल क्यूब. क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज a क्यूब x क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b x स्क्वायर प्लस 3 a b स्क्वायर x माइनस b क्यूब. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज ax होल क्यूब है ये. यस. b क्यूब को स्टार्टिंग में लिख लीजिए लाके माइनस b क्यूब. अब इसको हमें क्या करना है? अलग अलग फॉर्म में तोड़ना है. कैसे? सबसे पहले लिखिए 3 इंटू ax होल स्क्वायर इंटू b. क्या ये यही है? 3 इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हो गया इंटू b. 3a स्क्वायर b एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस 3ax इंटू b स्क्वायर ये वाला आ गया. सो अभी हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ गया? सिंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल क्यूब. सो it represent or so it will be ax minus b whole cube. So this will be ax minus b whole cube. Clear students? So now बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या आ गया? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज a क्यूब माइनस 12a इंटू a माइनस 4 माइनस 64. क्लियर हो गया? सो दिस इज a क्यूब
आप इसको भी यहीं पे लिख लीजिए, एंड 64 इज 4 क्यूब माइनस, अब आप इसको लिखिए 3 इंटू ए इंटू 4, 12 ए को हमने क्या लिखा, 3 इंटू ए इंटू 4 इंटू ए माइनस 4। क्लियर हो गया। अब आप इसमें ये देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, आइडेंटिटी देखिए। अब आप लिखिए कि सिंस, ब्रैकेट में लिखिएगा कि सिंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब, सो it will be a minus 4 whole cube, so it will be a minus 4 whole cube, hence the factorization will be a minus 4 into a minus 4 into a minus 4. So dear students, that's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आइडेंटिटी के साथ, नए फ्लेवर के साथ. Till then, bye bye, take care.